प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, Praise the Lord. सब लोग कैसे हो? How is everyone? परमेश्वर के आशीष में सब अच्छे हैं। Praise God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा में हम सब भरे हुए हैं। Amen. Praise God. Okay, आइए आज का मीटिंग शुरू करेंगे. Let us start today's meeting with a word of prayer. प्रार्थना पूर्वक आज का मीटिंग आरंभ करें. Lona. Yes, uncle. Yeah, can you start the meeting? Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this time, O Father God. We thank you, O Lord, that you have helped, O Lord, each one of us, O Father, to come into your presence, O Father God. Lord, as we have come into your presence, O Lord God, we praise your name, O Father, and we glorify your name, O Lord, and we remember all the goodness, O Lord, that you have shown in our life, O Father. We thank you, O Lord, for all of the blessings, O Father God, that you are showering in our lives, O Lord. Yes, Father, we come with a thankful and a grateful heart, O Father God. Yes, Lord, whatever the time of worship would be there, Father God, we submit it completely into your hands, O Father God. Help us, O Lord, to worship you in truth and in spirit, O Father God. And you take control, O Lord, and may your name and your name alone be glorified, O Father. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Before we start the praise and worship, I'd like to take a verse from the Bible. Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. यिर्मयाह 17वां अध्याय 17 इसका 7 से 8 वचन. First I'll read in English. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो. जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा. So we thank God and we praise God for the verse, and let us be like this man which is we just read, that blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. I know each one of us, we have our own problems, we have our own situations that we are dealing with, maybe personal life, maybe in our family life. But through all the situations, let us remember, like we just heard the song, that I will be still and know you are God. So let God may help us and he may enable us, that we may just trust completely in him no matter what the situation is. As the word says, that I will not be anxious even in the year of drought. So even if there is a standstill in our life, even if our life looks like a desert, God is a God who can make a way, who can make a river flow even in the desert. So all we have to do is trust and believe in him, because the word says that even the hair on our head is numbered, and even a hair can't be plucked without his knowledge. So whatever is happening in our lives, God is in control. He knows everything. So believing in that, we have an assurance that he is sitting on the throne and he knows what is best for us. And like Paul has said in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. In the same way, let our prayer also be the same way, that through God we can do each and everything, and he will provide us the strength. He will give us the strength in each and every situation and in each and every problem. So let us praise and worship. राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना.
यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर, गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, इस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी
पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। Yes, Lord, we thank you, Father God. We thank you, O Lord, that you are a protector, O Father God, that you are a shield, O Father, that you're a God, O Lord, who never sleeps nor slumbers, O Father God. And yes, Lord, whenever we want to look up to help, O Father God, we look up to the heavens, O Father God, because you're the God, O Lord, who has created the heavens and the earth, O Father God. We thank you, O Lord. We thank you for this time, O Father God. Lord, whatever word that will be shared, O Father God, we ask for your blessing, O Father God. Let that word penetrate into our hearts, O Father. Prepare our hearts and our minds, O Lord, to be receptive to your word, O Father God, and to discipline ourselves according to your word and purpose, O Lord, in our lives, O Father God. We bless Joe's uncle, O Father God. We thank you for this time, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. 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 Thank you, Lona, for leading us in worship. हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। यदि किसी का गवाही है तो आप बोल सकते हो परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों को उत्साहित करने के लिए। यदि किसी का गवाही है तो बोल सकते हो।
हेलो और बहुत सिस्टर, आपका ज्यादा आवाज नहीं आ रहा। हेलो रीना और सिस्टर, आवाज अभी आई आवाज आवाज कट रहा है, आपका नेटवर्क कम है। हेलो अब अभी भी नहीं आई आवाज ब्रदर अभी आई आवाज हाँ बोलिए। हाँ तो यस बोलिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी गवाही ये है कि पिछले 1.5 महीने से हमारे घर पे काम चल रहा था और जिसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। मतलब घर पे बहुत मेस था और सब इधर उधर शाम के समय सफाई का काम होता था जब वर्कर चले जाते थे। तो मतलब मैं प्रभु से जल्दी से मांग रही थी कि प्रभु ये काम खत्म हो और मैं ज्वाइन कर सकूं। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि घर पे किसी की भी मतलब डैना की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और सबको कोविड का भी जैसे वीकनेस थी। मैं ये धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ दी काम करने की। और मैं कैसे अकेले सब संभालती थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी सामर्थ प्रभु की ओर से आती थी और मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं अकेले मैंने सब संभाला। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे ये सब काम करने की सामर्थ दो। मुझे मतलब थोड़ी बीच बीच में वीकनेस लगती थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने बहुत मेरा ध्यान रखा और बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया और मैंने किया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमेन, प्रेज गॉड। और किसी का गवाही है? ओके, मैं एक गवाही, एक ऑडियो मैसेज है एक ब्रदर का, सूर्यवंशी ब्रदर, यदि आप लोग कोई जानते हो, जो हिंदी कलीसिया में आते थे। अभी पिछले साल कोविड लॉकडाउन वगैरह होने के बाद उनका पूरा परिवार वे गांव में जाके रहने लगे। तो वहाँ से संपर्क है उनका उनके साथ। तो उनका एक गवाही है सूर्यवंशी ब्रदर का। वो उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा है कि उनकी पिछले बार नेटवर्क के कारण वो दे नहीं पाए। तो मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूँ। सबको आवाज आ रहा है? Is it audible? No, brother. The audio is not audible? No. Okay, I'm just playing once more. मैं और एक बार प्ले कर रहा हूँ, जरा बताइए मुझे। आवाज आ रहा है सबको? No, no. No, brother. Okay. Joash? Did you share computer sound? That's a good question. Can you guide me, please? The 3 dots top right Yes. and share computer sound will be there. Share computer sound. Okay. सबको जय मसीह की। Is it audible now? Yes, brother. Okay, thank you. सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाला। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बीच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा सांस पूरा नहीं खुल रहा था, आवाज पूरा बंद हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रहा था।
और बहुत प्रॉब्लम भी हुआ मुझे 8-15 दिन। फिर हम लोग प्रेयर में थे, परमेश्वर ने कार्य किया। और एक दिन मैंने जोश ब्रदर को फोन किया और मुझे ऐसा हो रहा है, हम मेरे लिए प्रेयर करो। हम लोग भी प्रेयर में थे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरा सांस पूरी तरह से खुल गया। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और एक मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा बड़ा लड़की दिशा बहुत बीमार था, उसको बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था। सबको मालूम है हमारे मसीह लोग को कि मेरी लड़की को क्या हुआ था, जो इस उधर को सबको पता है। फिर हम लोग गांव आए, गांव में भी उसको बीमारी थी, लेकिन इधर आने के बाद 2 महीने का दवा बाकी था और मेरी लड़की पूरी तरह से चंगा हो गई। इसलिए परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। धन्यवाद कि परमेश्वर के नाम को कितना भी धन्यवाद करूँ तो कम है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद गवाहियों के लिए। परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और इन गवाहियों के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबको ग्रहण किया। हमारे हर एक परिस्थितियों के बावजूद आप हम सबको अनुग्रह दिए। आपका दया और अनुग्रह हर दिन हमारे लिए है। Your mercies are new every morning, as your word says. We thank you, Father. We believe on the finished work of Jesus on the cross. यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर हमारे अनंत जीवन के लिए जो कार्य पूर्णता से यीशु ने जो किया, कार्य समाप्त किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दया कर परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हम सब के जीवन में, व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया में आप एक बहुत बड़ा बेदारी को भेज परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, वी प्रे दैट यू विल सेंड अ माइटी रिवाइवल, cleansing each one of us individually, as a family and as a church. We pray, Father, that in these last days, God, you send a revival. Send the power of your Holy Spirit. Touch us and transform us. हम सबको छूकर और भी बदल परमेश्वर। हम सबके मन के आंखों को और भी खोल परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर भूख और प्यास आपके प्रति सबसे ज्यादा हो। यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर इन गवाहियों के लिए। आपने चंगाई दिया, अनुग्रह दिया, सामर्थ दिया, शक्ति दिया, हमें हमारे शरीर में बल दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो गवाही नहीं दिए उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपका उपस्थिति को हम महसूस करें और आपके महिमा के लिए हम गवाही बोले प्रभु। यस लॉर्ड। आज आपका वचन के द्वारा हम सब से और एक बार जैसे आप बातें करेंगे परमेश्वर, हमारे जीवन बदले और आपका पुत्र यीशु के आने के लिए हम सब तैयार हो। ऐसा होने दे परमेश्वर। यस लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया था कि बाइबल स्टडी के विषय में किस प्रकार से आप लोगों का अनुभव और आप लोगों का राय वगैरह और फीडबैक वगैरह। तो उसमें एक फीडबैक था कि बीच में हम ऐसे कोई विषय भी करना है, कोई स्पेशल मीटिंग, कोई स्पेशल टॉपिक पर करना है। ऐसा भी एक फीडबैक था। जो हम कोई एक पुस्तक पर हम ध्यान देकर अभ्यास करते हैं, जैसे प्रेरितों का पुस्तक पर, उसके अलावा हो सके तो 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार हम कोई स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल मीटिंग जैसे हम रख सकते हैं। मैं जानता हूँ ये मैंने पहले बताया नहीं, परंतु हम एक प्रेरितों का पुस्तक के अलावा आज के लिए हम एक अलग विषय को देखेंगे, और वो विषय है मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर्स। वचन का गलत अनुवाद जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और आज का जो विषय है, मैं चाहता हूं कि हम सब आपस में बात करें, चर्चा करें। आप भी इस विषय के चर्चा में आप भी शामिल हो, क्योंकि ये एक बाइबल स्टडी जैसा नहीं, परंतु हम इस विषय पर हमारे भी राय जो है, आपका जो समझ है, कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो आप भी इसमें आप क्या सोचते हो वो बता सकते हैं, और निशब्द न रहिए प्लीज। यदि आप निशब्द रहेंगे तो मैं नाम लूंगा आपके राय बताने के लिए। ओके, so let it be an interactive session. That's what I hope. We have almost 1 hour. It's a good enough time to have an interaction about this topic. So today's topic is misinterpreted scriptures. Misinterpreted scriptures, ये विषय, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब what do you think? What is the meaning of misinterpreted scripture? सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है। आप लोग क्या सोचते हो इस विषय का नाम जब आप सुनते हो? मिसइंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर या गलत अनुवाद किया हुआ विषय, वचन। बोलिए कोई भी। When we understand the word in a wrong way or in a different meaning. ओके, जब हम वचन का अर्थ गलत तरीके से हम समझते हैं, और जल्दी बोलेंगे तो समय का सही लाभ होगा, नहीं तो हम समय गवाएंगे। यस। जब हम जो कॉमन समझ है लोगों कलीसिया में, उसको मानकर हम चलते हैं, जो पूरा कलीसिया समझता है ऐसा, वो हम भी उसको अपना लेते हैं, बल्कि वो रॉन्ग है फिर भी हम अपना लेते हैं अननोइंगली। उसको भी मिस इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। That's a very good point. साधारण मसीह लोग, ज्यादातर मसीह लोग या कलीसिया में ज्यादातर लोग क्या समझते हैं एक वचन या एक अध्याय या एक विषय के बारे में, वही सही है करके अक्सर एक मनुष्य का सोच होता है कि वही सही है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। ओके, और कोई?
जब हम किसी वचन को ऐसे ही without understanding the context of the chapter, we pick up any verse and use it, so it can be misinterpreted. वेरी गुड। जब हम एक वचन को उसके उस अध्याय से, उस परिस्थिति में, जो परिस्थिति में बोला गया है, जो मकसद से बोला गया है, उस मकसद से निकालकर हम अलग से जब उस वचन को एक अर्थ डाल देते हैं, तब वो एक गलत अर्थ हो जाता है। ओके, और किसी ने चैट में कहा कि जब वचन को हम अपने फायदा के लिए हम अनुवाद करते हैं और उसका अर्थ को बनाते हैं हमारे फायदे के लिए, तब वो गलत अनुवाद किया हुआ वचन बनता है। ओके, वेरी गुड। और कोई? ओके, वेरी गुड। सो इसी प्रकार चर्चा जारी रखिए। Let's continue the discussion in the same way. Thank you. एक वचन हम पढ़कर इस विषय का आरंभ करेंगे, और इस विषय को जब हम देखेंगे, हम बहुत सारा आज कुछ वचनों को देखेंगे जो अक्सर गलत अनुवाद किया जाता है। ओके, साधारण तरीके से मसीह मंडलियों में, मसीह लोगों में हम देखते हैं कि इन वचनों का गलत अनुवाद होता है। उन वचनों को देखने के पहले हम एक वचन देखेंगे। इस वचन पर हम इस वचन को ध्यान में रखते हुए आज का विषय को हम सीखेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20 वाक्य। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 20 वाक्य। 20 और 21 दोनों वाक्य। दूसरा पत्र, 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। No. Are you reading 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21? सॉरी, पर पहले यह जान लो कि Yes. पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। ओके, पहले ये जान लो। पत्रस ये पत्रिका जब लिखता है विश्वासियों के लिए, तब पत्रस ये कहता है कि पहले ये जान लो। क्या जान लो? तो ये हमारे लिए है कि हमें जानना है। क्या जानना है? कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ भविष्यवाणी, ऐसा लिखा है ना? यस, पढ़िए। कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। यस, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के अनुसार पूरा नहीं होता। In English it says that no prophecy of scripture is of any private interpretation। पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बोला गया कोई भी वचन वो किसी के व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। ओके, इट इज नॉट फॉर प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि इस वचन के बारे में मुझे लगता है ये अर्थ है, अच्छा आपको लगता है कोई और अर्थ है, तो वो आपके लिए सही होगा। नहीं, सबका प्राइवेट इंटरप्रिटेशंस के लिए ये पवित्र शास्त्र के कोई भी वचन खुला नहीं है। इट इज नॉट ओपन फॉर एनीबॉडीज प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। तो फिर क्या है? 21 वाक्य पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी
मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, जब जब भी भविष्यवाणी ये शब्द वचन में जब हम हिंदी में पढ़ते हैं ये शब्द भविष्यवाणी, हमें ये ध्यान में रखना है, याद रखना है कि वो परमेश्वर का वाणी या परमेश्वर का बोला गया वचन, वो है उसका अर्थ। जरूरी नहीं है कि भविष्य के बारे में कुछ बताया गया, वो भी है, लेकिन परमेश्वर का वाणी। ओके, सो इट for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. तो भविष्यवाणी, कोई भी भविष्यवाणी मतलब कोई भी परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के इच्छा से नहीं आया। फिर कैसे आया? जब भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अगुवाई हुआ और परमेश्वर से उनको प्राप्त हुआ इन वचनों को, वैसे आया और हमें मिला। तो आरंभ कहां से हुआ है? वचन, परमेश्वर का वाणी, पवित्र शास्त्र, ये आरंभ हुआ है परमेश्वर से। ओके, सो इफ गॉड इज द वन हु स्पोक द वर्ड, देन ही इज द वन हु should interpret it for us. इसीलिए 20 वाक्य में हमने पढ़ा कि किसी के व्यक्तिगत अनुवाद के लिए ये वचन खुला नहीं है, मतलब हम व्यक्तिगत अनुवाद नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या मकसद से बोला था? आरंभ में जब बोला गया था तब उसका मकसद क्या था? उसी मकसद से हमें चलना है आज भी, हमेशा। तो कैसे पता चलेगा? आरंभ में जब परमेश्वर ने कहा कुछ, वो उस समय परमेश्वर ने कौन से मकसद से कहा, कौन सा अनुवाद है, वो वचन जो परिस्थिति में लिखा गया है या जो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, उस चैप्टर में क्या परमेश्वर क्या बात कर रहा है उस चैप्टर में, उसे पूर्णता से लेकर हम समझना चाहेंगे तो हमें उसका सही अर्थ समझेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए हम आगे के कुछ समय हम डिस्कशन चर्चा करेंगे कुछ वचनों को लेकर जिसका गलत अनुवाद अक्सर होता है। ओके, पहला वचन मत्ती 6वां अध्याय उसका 33 वाक्य। मत्ती 6वां अध्याय उसका 33 वाक्य। ये कहीं ना ये इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हम बाइबल स्टडी में भी इसके बारे में मैंने समझाया होगा, लेकिन हम और एक बार देखेंगे। या मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ओके, इसलिए पहला क्या करो? परमेश्वर, यस, परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। उसके धर्म की खोज करो तो क्या मिल जाएगी? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ओके, अब चर्चा का समय खुला है। आप लोग में से आप लोग बताओ, ये वचन हम या मसीह लोग अक्सर कब इस्तेमाल करते हैं? सत्य बताना। जब हम संसारिक वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं प्रभु से। सॉरी, जब हम संसारिक वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं प्रभु से, हम एक उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु का ये कार्य करेंगे तो हमें ये सब संसार की चीजें भी मिलेंगी। यस, तो जब हम संसारिक कोई चीज की आशा रखते हैं या हमें संसार में कुछ चीजें चाहिए, वो तो तब अक्सर ये वचन को इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड।
और कोई उत्तर? जल्दी जल्दी बोलिए। कब हम ये वचन अक्सर इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने सुना होगा कोई और इस्तेमाल करते हुए? अक्सर कौन से परिस्थिति में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं ये वचन? When we normally worry or fret about tomorrow, like what tomorrow will bring for us. Okay. So normally in that context, this verse is used. ओके, जब हम चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, ओके, तो कोई हमें उत्साहित करने के लिए या हमें थोड़ा हिम्मत देने के लिए बोलते हैं कि पहला परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करो तो ये सब मिल जाएगा, डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं, राइट? ओके, और कोई? कई बार लोग अपने लिए कुछ चाहते हैं परंतु बिना सोचे समझे ये इस्तेमाल करते हैं वचन का, कि कहते हैं कि आपके वचन में लिखा है कि ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी करके। हाँ, सो जब कोई कुछ चीजें प्राप्त करने का कोशिश करते तब, ऐसा कहा ना आपने? हाँ जी। या जैसे कैसे चीजें? जैसे मेरी कोई इच्छा है, मुझे जीवन में कुछ चाहिए, ओके, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं खोजता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, परंतु मैं वचन का इस्तेमाल करता हूँ, परमेश्वर आपने कहा है कि ये चीज मुझे मिल जाएगी। ओके, सो जैसे रीना सिस्टर ने भी कहा, संसारिक कोई चीज हमें जब चाहिए, संसार में कोई भी चीज, ओके, जब सांसारिक ये शब्द हम बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ खराब चीज या गलत चीज चाहिए, अच्छे चीजों का ही बात कर रहे हैं हम, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो उन चीजों को प्राप्त करने का जब हमें एक प्रयास हमारे अंदर होता है तब, ओके, पहला परमेश्वर का राज्य और उनका धार्मिकता का खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सब जो शब्द है, अक्सर मसीह लोग ये सब तुम्हें मिल जाएगा, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, ओके। हमारे सोच में तो बहुत कुछ है, अलग अलग लोगों के मन में तो बहुत कुछ है, ओके। किसी को एक झोपड़े का घर में से निकलकर एक माड़ा का कोई वन रूम, केवल एक वन रूम घर चाहिए, किसी को वन रूम घर से निकलकर 1 BHK चाहिए, किसी को 1 BHK में से 2 BHK चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, ओके, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को BMW चाहिए। तो हर एक के परिस्थिति के अनुसार हर एक के इच्छा और मांग अलग अलग है, ओके। तो ये सब तुम्हें मिल जाएगी। तो इसमें क्या ये सब आता है या इसमें से कोई भी चीज आता है, या ये सब में से जो भी प्रभु का इच्छा है वो है क्या? मैंने पहले शुरुआत में कहा, एक वचन को उस अध्याय में सिखाया गया विषय के साथ जोड़कर हमें समझना है। तो यीशु मसीह मत्ती का 6वां अध्याय में कौन सा विषय सिखा रहा था, विशेष करके अंत के उस भाग में जहां पर ये 33 वचन बोला गया है, ये यीशु मसीह का शब्द है। तो 25वां वाक्य से जब आप पढ़ेंगे, चिंता मत करो, यीशु मसीह कह रहा है। क्यों चिंता मत करो? तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, इन विषयों को लेकर चिंता मत करो, यीशु कह रहा है, ओके। तो मुझे ये विस्तार में नहीं कहना है, आप लोगों को ये अध्याय पता है और आप बाद में व्यक्तिगत रूप में आप गहराई में उतरकर इसका मनन कीजिए, मेडिटेट ऑन दिस चैप्टर, ओके। तो यीशु कहता है चिंता मत करो। किस चीज के लिए चिंता मत करो? यीशु कह रहा है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन चीजों का चिंता मत करो,
ओके, तो खाने पीने के बारे में और कपड़े पहनने के बारे में, ये दो चीज के बारे में यीशु ने कहा है। ओके, और उसके बारे में यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया है। ओके, पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, वगैरह वगैरह, उदाहरण सब देखकर समझाया। और ये सब समझाने के बाद अंत में यीशु मसीह उस विषय का अंत कैसे करता है? पहला परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। अब मुझे बताओ ये सब क्या है? यीशु मसीह क्या कहा इस अध्याय में? बोलो। खाना पीना और कपड़ा। खाना पीना और कपड़ा। ओके, हम अक्सर कहते हैं मनुष्य का सबसे प्राथमिक, मतलब सबसे जरूरी चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान। यीशु मसीह के लिस्ट में मकान भी नहीं है, केवल रोटी और कपड़ा का बात किया है यीशु मसीह ने। ओके, और स्वयं के बारे में जब उन्हें पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। एक शिष्य यीशु के पास आकर पूछा, गुरु आप कहां पर रहते हो? यीशु ने उत्तर दिया, आओ और देखो, कम एंड सी, ही सेड। क्या दिखाने लेके गया था यीशु मसीह? मैं कई बार ये कम एंड सी जो यीशु ने कहा उन दो शिष्यों को, मैं उसके बारे में कल्पना कर रहा था। ओके, कि यीशु क्या दिखाने चला गया, कहां पर रहता है? जब उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ओके, शायद वो दिखाने लेके गया, देखो मेरा तकिया, व्हाट डू यू कॉल फॉर पिलो? तकिया, राइट? हाँ, तकिया। हाँ, मेरा तकिया ये पत्थर है। ओके, मेरा सोने का जगह ये है। ओके, ऊपर देखो छत नहीं है। क्या ये दिखाने लेकर गया यीशु? शायद, हो सकता है, वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं। ओके, पौलुस फिलिपियों का पुस्तक जब लिखते वक्त विश्वासियों को कहता है कि मैंने अपने आप को सिखा दिया है कि मैं जो भी अवस्था में हूं संतुष्ट रहने के लिए, मैं भरपूरता में भी रहने के लिए मैं जानता हूं, मैं व्हाट डू यू कॉल फॉर स्कैरसिटी, कमी। हाँ, कमी या कमी में या अकाल अवस्था में भी मैं रहने के लिए मैं अपने आप को सिखा दिया हूं। मतलब कोई भी अवस्था आने दो, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं संतुष्ट हूं। ओके, ऐसा कहकर ये पौलुस कहता है कि I can do all things through Christ who strengthens me। ये हमारा अगला वचन है जिसका गलत अनुवाद होता है, तो हम उसमें जाएंगे थोड़ी देर में। तो पौलुस जब कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, I can do all things through Christ who strengthens me। ओके, हम उस वचन को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कई बार। ओके, हमें कुछ करना है तो कुछ प्राप्त करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, I can do all things। लेकिन पौलुस फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वाक्य में ये कहा, I can do all things through Christ who strengthens me। लेकिन उसके पहले के कुछ वचनों को आप पढ़ेंगे, पौलुस कौन से परिस्थिति में ये कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि मैं भरपूरता के अवस्था में भी मैं रहने को सीखा हूं और अकाल या कमी वाले अवस्था में भी मैं रहने के लिए सीखा हूं। मैं संतुष्ट हूं, अपने आप को मैं संतुष्टता में सिखाया हूं।
ऐसा कहकर पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ओके, तो व्हाट इज ऑल थिंग्स फॉर पॉल? पॉल के लिए ऑल थिंग्स ये है कि फिलिपियों का पुस्तक लिखते वक्त, फिलिपियों का पत्रिका पौलुस लिखते वक्त वो जंजीरों में था, वो जेल के अंदर था, बहुत ही कठिन परिस्थिति में था। सुसमाचार बांटने के कारण वो मार खा रहा था, सताव में था। वो उस सताव वाले अवस्था में बाहर स्वतंत्र जो बैठा हुआ विश्वासियों को एक जंजीरों में बांधा हुआ एक 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 परमेश्वर का दास कह रहा है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंद, प्रभु में आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। बाहर वाले लोगों को कहता है कि संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो, ये विषय सिखा रहा है वो। ओके, I can do all things through Christ who strengthens me। तो पौलुस के लिए क्या था वो all things? मैं प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो पौलुस के लिए सब कुछ क्या था? गाड़ी बंगला ये सब नहीं था। पौलुस के लिए इन जंजीरों में भी, इन कमी घटियों के अवस्था में भी मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं संतुष्टता से जी सकता हूं। यहां पर मैं एक मौका निकालकर मैं सुसमाचार बांट सकता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा आई कैन डू ऑल थिंग्स। पौलुस के लिए मटेरियल थिंग्स नहीं था। हम वचन के हर चीजों को हर चीजों को हम मेटीरियलिस्टिक माइंड से हम लेते हैं, क्योंकि हमारा मन मेटीरियलिस्टिक बन गया है। इसीलिए पौलुस रोमी का पुस्तक 12 अध्याय में कहता है कि अपने मनों को नया करो, रिन्यू योर माइंड, बी ट्रांसफॉर्म्ड, डू नॉट बी कंफॉर्म्ड टू द वर्ल्ड। संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए किए जाने से बी ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तन हो जाओ। ओके, लौट कर आएंगे मत्ती का 6वां अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि पहला परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह के लिस्ट में रोटी और कपड़ा है। ओके, और पौलुस कहता है इसमें संतुष्ट रहो। पौलुस कहता है कि मैं संतुष्ट हूं, मुझे रोटी और कपड़ा मिला, संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। ओके, ये सोचने वाली बात है। ओके, हम अक्सर कौन से परिस्थितियों में इन वचनों को इस्तेमाल करते हैं, वो गलत अनुवाद हो जाता है यदि कोई, और हम गलत मकसद से नहीं करते, हमारा मकसद अच्छा होगा, किसी को उत्साहित करने के लिए होगा। ओके, लेकिन हमें इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला वचन में जाने के पहले इस वचन के बारे में किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है, आप कर सकते हो। जैसे वचन 6:24 में लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन पर लिखा हुआ है। तो इसी विषय को लेकर जब हम परमेश्वर को नहीं उस धन के पीछे भागते हैं, तभी ही ये वचन लागू होता है कि नहीं, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। करेक्ट, तभी ये, यानी कि परमेश्वर धन, हम दोनों की सेवा नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। करेक्ट, परमेश्वर हमारा धन बनना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू, दैट्स राइट। और कोई ऐड करना चाहता है? Omkar want to add one scripture.
यस यस खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। सॉरी, खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। करेक्ट। ओके, थैंक यू। खरा पानी से मीठा पानी, खरा सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, राइट। और किसी को कुछ कहना है इस हम अगला वचन में जाने के पहले? ओके, अगला वचन जो मैंने पौलुस का कहा था, फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय में जाएंगे। फिलिपियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय। चौथा अध्याय उसका 19 वाक्य पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, कोई भी एक पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़िए। जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर यस भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर उनके धन के अनुसार हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। ओके, अपने धन के अनुसार जो महिमा, वो शब्द क्या है? महिमा सहित। यस, महिमा सहित। ओके, थैंक यू जोश। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। ओके, तो परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। ओके, तो पौलुस ने ये कहा, ये वाक्य विश्वासियों को, हमसे कह रहा है, ओके, कि परमेश्वर हमारे घटियों को पूरा करेगा। तो परमेश्वर हमारे घटियों को पूरा करेगा, ये वचन अक्सर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? बोलिए। My God shall supply all your need. Don't worry, brother. Don't worry, sister. My God shall supply all your need according to his riches in glory. कहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है? आपने सुना होगा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बोलिए। हाँ, जैसे ये वचन हमें सिखाता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा? धन, उनके लिए उस टाइम वो धन क्या था? कनान देश। एक मिनट। मैंने पूछा ये वचन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जब एक व्यक्ति कहता है दूसरा एक मसीह भाई या बहन को, ब्रदर सिस्टर आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। ऐसा कौन से परिस्थिति में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ये वचन? वो बताइए, सोचकर बताइए। हाँ, अगर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में है उसको बहुत तकलीफ है फाइनेंशियल, और यहाँ ये एक अलग बात है। और दूसरी, अगर वो परिस्थिति भी अगर उसके पास है न पतो, जैसे अभी महिमा जैसे हमारी ठीक नहीं थी और उस समय हमको बहुत तकलीफ था, तो लोग हमें क्या कहते थे? चिंता मत कर, परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर अपने महिमा के धन से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, प्लस महिमा को भी चंगा करेगा। तभी घटी था, तभी हम लोग मतलब डॉक्टर के वजह से हम जा रहे थे और हमारे पास नहीं था, तब हमने डॉक्टरों को कितना रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने नहीं सुना। क्यों? घटी था। फिर मैं निराश हो गई थी। पर
तो दो परिस्थिति पूजा सिस्टर ने बताया। एक तो जब एक व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है उस वक्त, और दूसरा उनके खुद के अनुभव से जब महिमा ठीक नहीं थी, ऐसे परिस्थिति में ये वाक्य कार्य में आता है। ओके। और दूसरा किसी ने चैट के द्वारा कहा या वही बात, जब एक व्यक्ति के जीवन में कुछ हानि होता है, कोई लॉस होता है, तो उस वक्त ये वाक्य के द्वारा उत्साहित करते हैं। ओके। और कोई परिस्थिति किसी और को कहना है? बोलिए बोलिए, आज आपका बोलने का बारी है। Okay, so yes, financial needs, correct. So अक्सर जो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता, या आप लोग ने नहीं कहा तो मैं कह लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, यदि एक व्यक्ति कोई विदेश जाने के लिए पासपोर्ट ट्राई कर रहा है, ओके, या वीजा के लिए ट्राई कर रहा है, और एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ, ओके, डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी सिस्टर, परमेश्वर ओके हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी, गॉड विल प्रोवाइड। ओके, ये काम पूरा होगा। ओके, ऐसे कई परिस्थितियां, वो हो सकता है जॉब में प्रमोशन हो, या ऐसे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन आरंभ में जाएंगे कि जैसे हमने पत्रस का पुस्तक में शुरुआत का एक वचन में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन, द होली मैन ऑफ गॉड, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 21 वाक्य। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यस, भक्त जन, इन वचनों को भक्त जन के द्वारा परमेश्वर हमारे पास पहुंचाया है, इन वचनों को। तो जब हम फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय 19 वाक्य हमने पढ़ा, परमेश्वर उनका भक्त पौलुस को इस्तेमाल किया, ओके, पौलुस को इस्तेमाल किया कि इन वचनों को हम तक पहुंचाने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा देकर, ओके, इन वचन हमारे पास आए। लेकिन ये कोई व्यक्तिगत अनुवाद के लिए खुला नहीं है। परमेश्वर जो मकसद से अपने भक्त जनों के द्वारा ये कहा है, वो मकसद को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आपके व्यक्तिगत अभ्यास में फिलिपियों का 4 अध्याय पूरा पढ़िए, ओके। और फिलिपियों का 4 अध्याय में, जैसे मैंने पहले कुछ चीजों को कहा, पौलुस कौन सा विषय को विश्वासियों को सिखा रहा है, कौन सा विषय सिखा रहा है? संतुष्ट रहने का विषय। 11 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, नॉट दैट आई स्पीक इन रिगार्ड टू नीड, for I have learned in whatever state I am to be content। 11 वाक्य पढ़िए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं जिस दशा में हूं उसी में मैं संतुष्ट करूं, संतोष रहूं, ये मैंने सीख लिया है, अपने आप को मैंने सिखाया है। पौलुस कहता है, मैं जो भी अवस्था में हूं, ओके। तो अब उस पौलुस का उस शब्द को हमने जो भी परिस्थितियां
बताया जिन परिस्थितियों में आज मसीह लोग ये वचन 19वां वचन को इस्तेमाल करते हैं, उस परिस्थिति को मैं यहां पर लेकर आना चाहता हूं। जो 11वां वचन में पौलुस कहता है, मैं जो भी परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहने के लिए सीख गया हूं। पौलुस कहता है मैंने अपने आप को सिखाया हूं। ओके, तो पौलुस जब कहता है कि मैं जो भी परिस्थिति में हूं मैं अपने आप को संतुष्ट रहने के लिए सिखाया हूं। ओके, तो आज के कौन से परिस्थितियों में ये 19वां वाक्य इस्तेमाल होता है? जैसे मैंने पासपोर्ट का कहा, वीसा का कहा, ऐसे कई चीजें। ओके, तो यदि मैं पासपोर्ट के लिए गया, मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ या वीजा रिजेक्ट हुआ, 11वां वाक्य के अनुसार, पौलुस के शिक्षण के अनुसार मेरा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? उस एम्बेसी से बाहर निकलते वक्त मैं उदास होकर निकलना चाहिए या नाचते कूदते हुए प्रभु धन्यवाद बोलना चाहिए? मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, मैं संतुष्ट हूं, जो भी अवस्था है। ओके, क्या हम ये सिखा सकते हैं? नाचते कूदते हुए, मैंने थोड़ा एग्जैजरेट होकर कहा, बोला मैंने, लेकिन आप समझते हो मेरा मेरा संदेश क्या है? ओके, कोई भी परिस्थिति में हमने जो आशा रखा या हमने जो इच्छा रखा वो इच्छा के अनुसार यदि नहीं हुआ, ओके, तो पौलुस जो कहता है मैं जो भी अवस्था में हूं मैं संतुष्ट हूं। हमारा इच्छा कुछ था, वो नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड। वो पूरा हुआ, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अवस्था में, ओके, वी आर मोर देन सैटिस्फाइड। क्या हम ऐसा एक मनोभावना से जी सकते हैं? ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आशा रखना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और एक बार ट्राई करना गलत है, नहीं, ये सब ठीक है। ओके, बट डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी सैड। Okay, let us be encouraged by the word that praise God, thank you, maybe God has some other plan। ऐसा हम अपने आप को सिखाना है। ये आसान नहीं है। ओके, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। पौलुस ने कहा 11वां वाक्य में, मैं कोई भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने के लिए सीखा हूं। 12 वाक्य पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हर अवस्था में मैं भूखा रहना भी सीखा हूँ। ओके, मैं तृप्त होना मतलब सब प्रबंध पाकर कैसा जीना है वो भी मैं सीखा हूं। ओके, लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं, हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हम केवल क्या ऐसा है कि जब प्रभु सब कुछ देता है तब हम खुश है? ओके, जब हमें भूखा रहना पड़ता है तब कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। यदि मैं मसीह व्यक्ति हूं तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं? ओके, तो ये बहुत उत्साहित देने वाला एक वचन है हमारे लिए। और पौलुस का खुद का अवस्था क्या है ये समझकर ये वाक्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने पहले कहा आपको, पौलुस बहुत ही बुरी अवस्था में जेल में पड़ा है।
जब ये पत्रिका लिख रहा है, ओके, और पौलुस कहता है कि मैं सब अवस्था में जीना मैंने सीख लिया हूं, ओके, सो ही इज हैप्पी इन द जेल. कैन यू इमेजिन? Is it possible for us to be happy and rejoicing in all times? Okay. Okay, let us be practical. Okay. कभी कभी दुख होता है. ऐसा क्यों हो रहा है? दुख होता है, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा जब हमें वचन याद दिलाता है, तब हमें उस अवस्था से उठना है. Okay, we have to rise and shine. That is what I'm trying to say. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कभी दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कभी उदासी नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं. ओके, और दर्द को व्यक्त करना ये गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं. उदासी को व्यक्त करना ये गलत नहीं है. ओके, हमें व्यक्त करना है. मैं उदास हूं, मुझे प्रॉब्लम्स है, हमें व्यक्त करना है. लेकिन ओके, उस वक्त हमें प्रोत्साहित करने वाला वाक्य जो पौलुस कहता है, ऐसे अनेक वाक्य है जो पौलुस कह रहा है, मैं संतुष्ट हूं जो भी अवस्था में. ओके, और फिर 13वां वाक्य में पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. ये क्या है ये सब कुछ? पौलुस जो परिस्थिति का वर्णन वहां पे कर रहा है, ओके, मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस के लिए सब कुछ मैं कर सकता हूं. वो क्या है? जेल में रहकर भी मैं आनंदित रह सकता हूं, मेरे कमी घटियों में भी मैं आनंदित रह सकता हूं, संतुष्ट रह सकता हूं. इसके लिए मुझे अनुग्रह चाहिए. मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह में का उसका अर्थ वो है. ओके, मैं सब कुछ कर सकता हूं का अर्थ ये नहीं है कि मुझे इस अवस्था में नहीं रहना है, मुझे भरपूरता का अवस्था चाहिए, मुझे केवल वही अवस्था जमता है. ओके, यदि हमें एसी में जीने की आदत है, ओके, और फैन का अवस्था, या गांव में जाकर जब पंखा या इलेक्ट्रिसिटी अक्सर चला जाता है, हमें अपने आप को एक पेपर या बुक लेकर हवा मारना पड़ता है. ओके, मैं आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं एक एसी को प्राप्त कर सकता हूं, एयर कंडीशन मुझे चाहिए. मैं ये वचन को क्लेम करता हूं. आई कैन डू ऑल थिंग्स मीन्स आई कैन बाय एन एसी. नो, I'm not saying buying an AC is wrong, okay? लेकिन हमें यहाँ पर समझना जरूरी है कि I can do all things का मतलब ये है कि मैं इस पसीना वाला अवस्था में भी मैं जी सकता हूं. वो अर्थ से पौलुस ने कहा. बस इतना मैं कह रहा हूं. ओके, मैं न्याय नहीं कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड कि एसी हो, फैन हो, कोई भी अवस्था हो, उसमें सही गलत वाला बात नहीं है. लेकिन हमारा मनोभावना परिस्थितियों के बीच में हमारा मनोभावना क्या होना चाहिए, मैं केवल वो कह रहा हूं. ओके, ओके, किसी को अगला वचन में हम जाने के पहले किसी को कुछ ऐड करना है इस विषय को लेकर, ये इन वाक्यों को लेकर? वचन का घटी, जैसे पौलुस को पता चल गया था कि ये वचन का घटी को, मतलब जैसे इसमें लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन, परमेश्वर का धन, ये वचन ही धन है. वो घटी को उसने महसूस, परमेश्वर ने उस घटी को पौलुस के जीवन में महसूस करवाया. परमेश्वर का वचन उसके साथ था, इसके लिए वो संतुष्ट रहना सीख. इसके लिए उसने जान लिया कि परमेश्वर का धन यही है. उस अवस्था में मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस ने ऐसा कहा होगा कि हाँ, यही धन है, ये महिमा का धन जो मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा. क्यों? क्योंकि वो वचन की घटी नहीं थी, परमेश्वर ने उससे सिखाया. करेक्ट, थैंक यू. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो हम गीत गाते हैं ना,
तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह में हमने सब कुछ पा लिया है, तो हमें कुछ घटी नहीं है। ओके, तो बाकी चीजें ऊपर नीचे होता रहता है कभी नहीं है, ऐसे परिस्थितियां होता है, लेकिन हमने उस सच्चा धन को तो पा लिया है। There is nothing that we lack now. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Okay. रोमी का पुस्तक 8वां अध्याय 28 वाक्य, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। Romans chapter 8 verse 28. All things work together good for those who love God. Actually इसमें those who love God के लिए all things work together good. Not for everyone who doesn't love God. Yeah. What is the verse? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called, to those who are the called according to his purpose. हम जानते हैं Yes. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो अक्सर मैंने सुना है कि इस वचन को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, डोंट वरी, सब कुछ भलाई के लिए होता है, परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। क्या आप लोगों ने सुना है ये ऐसा? यस यस। देखो, ये सब जो वचन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये अक्सर अच्छे मकसद से लोगों को उत्साहित करने के लिए, दिलासा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि ये दिलासा देते देते हम एक दूसरे को, हमें ज्यादा पैम्पर नहीं करना है। ओके, कष्ट झेलने के लिए हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना है। ओके, वचन उत्साहित करना, कष्टों में से होकर गुजरने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, पैम्पर करने के लिए नहीं। ओके, तो अच्छे मकसद से भले लोग बोलते हैं, लेकिन गलत है ऐसा बोलना केवल कि डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी सिस्टर, परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है और सब कुछ अंत में अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा। नहीं, वो अधूरा है। वो वचन ऐसा नहीं कह सकता हम, वो वचन अधूरा है। इस 28 वाक्य में एक शर्त है, सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए करता है, वो एक शर्त के साथ लिखा हुआ है। क्या है वो शर्त? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और उसके पहले, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ, सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए है ये वचन, सबके लिए नहीं है। ओके, तो अब कैसे जाने कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो। इफ यू लव मी, ओबे माई कमांडमेंट्स। तो
आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं, आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं, वचन के अनुसार जीते हैं कि नहीं, या जीने का इच्छा रखते हैं कि नहीं, यदि है तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और यदि इस प्रकार से प्रेम करते हो आप परमेश्वर से, तो आपके लिए सब कुछ भलाई के लिए होगा, निश्चय होगा। तो आप ये वचन क्लेम कर सकते हो। यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना नहीं चाहता, मैं अपने इच्छा से जीता हूं, अपना मनमानी करता हूं, और जब मुसीबत आता है मैं परमेश्वर को उनका प्रॉमिस या प्रतिज्ञा को याद दिलाता हूं, प्रभु आपने कहा सब कुछ भलाई के लिए होता है तो आपको करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, सो ये हर वचन जब हम यूज करते हैं, क्लेम करते हैं, एक क्षण वहां पर रुक कर हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। वचन, उसी वचन में लिखा हुआ हमारे तरफ से जो परमेश्वर का मांग है, जो इच्छा है, जो हमें निभाना है, क्या वो हमने किया है? तो हम निश्चय क्लेम कर सकते हैं इस वचन को। ओके, किसी को कुछ जोड़ना है, कोई पॉइंट इसके साथ? ओके, नहीं तो हम और एक वचन में जाएंगे। पहला कोरिन्थ का पुस्तक 2 अध्याय 9वां वाक्य, 1 Corinthians chapter 2 verse 9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अक्सर ये वचन भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखिए जो भी वचन है सब प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे मकसद से यूज होता है। ओके, लेकिन हम भूल जाते हैं उसका मूल अर्थ क्या था। मटेरियल चीजों के लिए या ऐसे हमारे स्वार्थ के लिए और बिना हम अपने आप को जांचे इस्तेमाल करने के लिए नहीं है ये सब वचन। इस वचन में देखिए, जो कोई आंखों ने नहीं देखा है, जो कोई कानों ने नहीं सुना है, कोई अपने मन में भी चित्त नहीं किया है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। यहाँ पे भी एक छिपा हुआ एक शर्त आपको दिखाई दिया होगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात स्वर्ग के लिए है, ना ही पृथ्वी के लिए है। Yeah, I'm coming to that. Yeah, correct. That's right. स्वर्ग के लिए, परंतु स्पष्टता से ये बुद्धि के लिए है। Paul is talking about God's wisdom in chapter 1 and chapter 2 beginning. He's talking about wisdom. परमेश्वर का बुद्धि के बारे में बात कर रहे हो, विषय वो है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस वचन में ही यदि आप देखेंगे तो स्पष्टता से लिखा है कि उनको प्रेम करने वालों के लिए रखा है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ओके, तो परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए ऐसा चीज रखा है जो कोई कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, जो अपने चित्त में नहीं सोचा, अपने मन में भी नहीं सोचा, हृदय में। वो क्या बात है, कौन सा बात रखा है परमेश्वर, ऐसा कौन सा गुप्त बात परमेश्वर ने रखा है? ओके, क्या BMW रखा है? मैंने सुना है
जब एक व्यक्ति एक प्रार्थना का विषय लेकर आता है, बस एक छोटा सा परमेश्वर मेरे लिए एक छोटा सा गाड़ी दे तो अच्छा होगा, ओके, तो उसको उत्साहित करने के लिए दूसरा व्यक्ति कहता है आप छोटा चीज पर मत देखो, हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, कुछ बड़ा सोचो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो कोई कानों ने नहीं सुना है, कोई आंखों ने नहीं देखा है, वो परमेश्वर आपको दे सकता है। तो छोटे गाड़ी में सेटल मत हो जाओ, ओके, थिंक बिग बिकॉज आवर गॉड इज बिग, ओके, फाइन, दैट साउंड्स वेरी स्पिरिचुअल, ओके, परंतु जो कोई आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ओके, जो परमेश्वर ने उनको प्रेम करने वालों के लिए रखा है, वो क्या चीज के बारे में पौलुस कहता है यहाँ पे? परमेश्वर का बुद्धि के बारे में कह रहा है यहाँ पर, ओके। मेरा समय कम है। पहला कोरिन्थ का पहला अध्याय का 18वां वाक्य से आप लोग बाद में पढ़िए, आपके व्यक्तिगत अभ्यास में आप पढ़िए, ओके। तो 18वां वाक्य से ही it talks about the message of the cross. क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। ऐसा कहकर पौलुस परमेश्वर का बुद्धि के बारे में वर्णन करने लगा कि जो लोगों ने परमेश्वर के उस क्रूस की कथा, जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो लोगों ने उस क्रूस की कथा को अपनाया है वे बुद्धिमान है, पौलुस कहता है, ओके। और संसार के सामने एक सवाल छोड़ता है पौलुस, कहां है इस संसार का बुद्धिजीवी, ओके, कहां है, वेयर इज द डिस्प्यूटर ऑफ दिस एज, ओके। क्या परमेश्वर ने इस संसार के बुद्धि को शर्मिंदा नहीं किया है? ऐसे सब सवाल करते करते पौलुस कहते जा रहा है कि परमेश्वर ने 27 वाक्य पढ़िए, 27 क्विकली। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना है और कमजोर लोगों को चुना है। ये पौलुस कौन से परिस्थिति और विषय के बीच में ये बात कर रहा है कि हम जो अपने आप को अनपढ़ समझते हैं, हमने प्रेरितों का पुस्तक में पढ़ा कि पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य लोग, काफी लोग अनपढ़ थे, परंतु उनका बुद्धि की बातें सुनकर उस समय के व्यवस्था के शिक्षक लोग भी आश्चर्य हो गए, क्या ये वही अनपढ़ यीशु के शिष्य लोग नहीं है? ऐसे सवाल किए, ओके। तो बुद्धिमान, इस संसार के बुद्धिमान लोगों के सामने अनपढ़ शिष्य, उनको लज्जित किया। परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों को चुना, ओके। ऐसे पर ये है परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि। और पौलुस दूसरा अध्याय का 4वां वाक्य में कहता है, पढ़िए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। मेरे वचन क्या नहीं है? मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हाँ, तो पौलुस कहता है कि मेरे वचन में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु क्या था? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। दूसरे एक जगह पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक साधारण प्रचार लेकर आया, केवल
यीशु मसीह का क्रूस का प्रचार मैं करता हूं। पौलुस कहता है कि आई प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। केवल वही, पौलुस को बहुत कुछ चीजों का ज्ञान था। ओके, उस समय का बहुत ही एक ज्ञानी व्यवस्थापक, व्यवस्था सिखाने वाला एक शिक्षक गमालियल के नीचे पौलुस अपना शिक्षण प्राप्त किया था, बहुत कुछ ज्ञान था। परंतु यीशु मसीह का क्रूस की कथा के सामने सब कुछ उसने तुच्छ समझा, तुच्छ समझा। तो यीशु का क्रूस की कथा पौलुस के लिए बुद्धि की बातें थी, बुद्धि की बातें। और इस बुद्धि की बातों से पौलुस ने प्रचार किया क्रूस की कथा को। और फिर 9वां वाक्य में पौलुस कहता है कि कोई आंखों ने नहीं देखा है, कोई कानों ने नहीं सुना है, और अपने हृदय में भी चित्त नहीं किया, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। वो क्या बात है, क्रूस की कथा के बारे में कह रहा है। परमेश्वर को प्रेम करने वाले परमेश्वर को खोजेंगे और पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, क्रूस के द्वारा उद्धार पाएंगे। वो परमेश्वर ने रखा है जो कोई कानों ने नहीं सुना है। The message of the cross is a mystery, and that God has kept for those who love him. कृपया करके हम इन वचनों को मटेरियल चीजों के लिए इस्तेमाल न करें। ओके, परमेश्वर हमारे जरूरतों को जरूर पूरा करता है। ओके, परंतु परिस्थितियों को जानना, वचन को समझना बहुत जरूरी है। ओके, और भी कुछ वचन है जो गलत अनुवाद किया जाता है, परंतु हम कोई और समय पर आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आए। आप हम सबको आपके वचन के द्वारा आशीषित किए, इस संगति के द्वारा आशीषित किए, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके वचनों को केवल पढ़ना नहीं परंतु हम मनन करने वाले लोग बने, ताकि हम सत्य को जाने। यस लॉर्ड, ताकि हम अच्छे मकसद से भी गलत अनुवाद न करें। प्रभु पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने अपने परिस्थितियों में संतुष्ट रहे, और आप जो हमें सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा हम ये गवाही दे पाए, कह पाए कि हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम संतुष्ट रह सकते हैं। यस लॉर्ड, हम सताव को झेल सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हम परीक्षाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं पाप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। यस लॉर्ड, हम सबको ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर। इन वचनों से हम सबके जीवन को आप बदल प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लुएश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने और एक साल लुएश को आगे बढ़ाया, जीवित रखा, हर उतार और चढ़ाव में से आप उसको ले चला। आपके उपस्थिति को वो महसूस करे, और भी आने वाले दिनों में ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने जिस मकसद से लुएश को इस संसार में जन्म दिया, वो मकसद उसके द्वारा पूरा होने दे परमेश्वर। आपके बुलावट को लुएश समझ और भी अच्छी तरह से समझे, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप लुएश को भर प्रभु। यस लॉर्ड, आपके मार्ग में आगे बढ़े और फलवंत हो। यस लॉर्ड, आपका महिमा उसके जीवन के द्वारा हो, उसके परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, और जहां कहीं भी आपने उसको नियुक्त किया है वहां पर वो आपका गवाही बने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।
हम सब एक मन होके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लुएश को आशीषित कर दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone. Praise Lord, brother. Praise the Lord. Praise Lord, sister. सबको praise Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord.